एज पर शेड्यूल हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल शुरू किया था सीरीज, और उसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। और यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन का सर्किट डायग्राम रीड्रॉ मैंने किया है। और हियर वी आर हैविंग 2, 20 and 30 and R, these are connected in parallel because this is one of the common terminal. So these two resistance and these two resistance are connected in parallel, and then this parallel combination is further connected to the remaining circuit. So you can see potential difference across this, that means AB, that is given as 6 volt 8 ohm resistor. This is 8 ohm resistance, and across this terminal we are having total potential difference of a 16 ohm. So it is given in the question, and then we have to find out the battery potential of X. Battery potential of X. What is the potential difference on the battery? This X is there. Find EMF of X. हमको X की वैल्यू निकालना है। X यहाँ पर EMF को रिप्रेजेंट कर रहा है as per in the given question। और हम इसमें अब आगे चलते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले हम AC के अक्रॉस टोटल BAC का हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम BAC अगर निकालते हैं, BAC, ये BAC आपका है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हमारे पास है 30 into 5 प्लस सबसे पहले हम 1/20 प्लस 1/20 इक्वल्स टू 1/r डैश निकालेंगे। मीन्स ये हमारा r डैश है। सबसे पहले हम इस पोर्शन को लीव करके 20-30 के बीच का रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो जब हम उसको निकालेंगे तो ये जाएगा हमारे पास 30 प्लस 20/20 इंटू 30 इक्वल्स टू r डैश आ रहा है। 1/r डैश था, और r डैश की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो 12 ओम आ जाएगी। सो दिस प्लेस ऑफ दिस पार्ट I have written here 12 ohms. अब जो सर्किट हमारे पास आ रहा है, अब हमें निकालना है BAC, मतलब AC के अक्रॉस। तो AC के अक्रॉस 5 into 12 प्लस 18 into 5 प्लस ये जो वोल्टेज यहाँ पर दे रखा है उन्होंने 20 वोल्ट, ये बैटरी वोल्टेज है। इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं 60 प्लस 90 प्लस 20, ये टोटल आ रहा है 170 वोल्ट। तो हमने यहाँ पर AC के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC इक्वल्स टू, सो दैट मीन्स नाउ दिस one terminal is there. Here we are having 8 ohm, here we are having one X, and here we are having C. So between this AC, now this between this A and C, actually we are having here potential difference of 170 volt, but the direction is here and another direction is here, and here we are having total 16 volt. What we have to do now, you know, we have to do BAB plus BAC minus plus of BBC equals to BAC. This is the condition coming. BAC is being divided into B1 plus B2 because BAB and BBC are in series. So what we have to find out? We have to find out BBC. BBC, when we will get, here we will get it. This is the condition. We want to find out BBC. So BAC minus BAB we will get here. And when we will solve the question,
Here we are having VAB equals to VAB equals to 170 plus of total of 16, and we are getting here 186 volt. Reason is there, the current is flowing through this direction and in this current is flowing in upward direction. So like that, minus of BAB plus of BC equals to BAC we are getting, and when we have to find out the total BBC, we are getting 170 plus 16, and when we will solve 170 plus 16, we are getting here 186 volt. So that means the EMF of X is equal to 186 volt. So our first question has been carried out. First question has been carried out. Now we will apply a junction rule. First we will find out the value of I dash. Now we are solving the B part. We will be getting the value of I dash, and for getting the value of I dash, what is the value here? 16 volt divided by V equals to I dash R, V dash equals to I dash R dash. Here V dash equals to 16 volt. Here I dash we have to find out, and R dash is 8 ohm. This is the diagram coming here. I dash, this is our 8 ohm, and here total potential difference is 16 volt. So that diagram I have taken, and I have calculated the value of I dash, that is 16 upon 8. You are getting 2 ampere. After that, we will take this part. This is our I dash, this is our 5 ampere, and this is our I. Because we have to find out the current flowing through 200 volt. This is I. Here we will be applying the junction rule. So 5 ampere equals to I plus I dash. 5 ampere equals to I plus 2. 5 ampere equal minus of 2 equals to I. So I equals to 3 ampere. So finally we got the second part also, that through the battery 200 volt, the total current which is flowing is of 3 ampere. Total current which is flowing here is of 3 ampere. Now we are coming to the last part, and we want to find out the value of this R. We have to find out the value of this R. What we can do here now, for third case, we will take the part here. This is our R by 2. This is our I. This is here coming 200 volt. Here we are following the same part. Here we are having 3 ampere. Here we are having 8 ohm. Here we are having now 186, which has been calculated, and this is the total overall one circuit loop. Loop rule we are going to find out. Loop rule we are going to find out. So 16 minus, you know, this was moving like this and this was moving like this. So 16 minus, now 16 minus what will come? 186 plus 200 volt plus 200 volt. You can also write R by 2 into I. What is the value of I? It is coming here 3 ampere equals to 200 volt. Okay. Or if full complete loop we are taking, then for full complete loop it will become minus 3R by 2 and plus of 200 volt. That also you can do. Finally, you will get 3R by 2 equals to 3R by 2. Now, what else things is remaining here? 3R by 2. So, 16 minus 180 minus, plus of 200. Here you will get 216. 200, and this is 186. And when we will, it is coming 216 minus 186.
So you will get here 30. So finally 3r by 2 equals to 30, or r by 2 equals to 10 into 2, 10, or r equals to 10 into 2 equals to 20 ohms. So like that, you see, we have calculated the value of r also. Now in this prescribed question, you can just see we have applied three types of formulae. First, we have to find out the potential difference across AC. So for that, I have just taken this loop and net potential difference I have calculated. In the beginning, first I have started with parallel combination of resistance. I have calculated the value of R dash. Okay, and that value of R dash after taking, I have calculated the value of A and C के बीच में कितना potential difference है. तो ये जितना भी पोटेंशियल यहाँ एग्जिस्ट हो रहा होगा वो AC के बीच का पोटेंशियल है, जो फाइनली मैंने 170 बना लिया. 170 निकालने के बाद मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ये लिया हुआ है. आप देखिए ये वाला पार्ट. अब इन दोनों के बीच में A 170 था, ये डायरेक्शन 16 था, ये डायरेक्शन x था, डाउनवर्ड था, ये ऊपर वाला अपवर्ड था. तो अब ये जो पार्ट चल रहा है यहाँ पर, तो 170 इक्वल्स टू x प्लस 170 प्लस x इक्वल्स टू 16 हो जाएगा. 170 प्लस x इक्वल्स टू 16 हो जाएगा. और इस तरह से हम अगर देख रहे हैं, माइनस x आ रहा था ये क्योंकि डायरेक्शन पलट गया है इसका, तो x इक्वल्स टू 170 प्लस ऑफ 16 होके हमको 186 इसका बैटरी वोल्टेज मिल गया. उसका बैटरी वोल्टेज निकालने के बाद फिर हमें निकालना है कि इस 200 वोल्ट पे कितना करंट फ्लो हो रहा है. तो फाइनली फिर मैंने यहाँ पर लगाया जंक्शन रूल. पहले मैंने यहाँ पे आई डैश की वैल्यू निकाली. आई डैश की वैल्यू मैंने कैसे निकाली? आई डैश की वैल्यू मैंने जंक्शन रूल से निकाली है. पहले मैंने आई डैश निकाला इन दोनों का, 8 इंटू आई डैश इक्वल्स टू 16 था, तो मैंने आई डैश की वैल्यू निकाली. और उसके बाद मैंने जंक्शन रूल से आई की वैल्यू निकाली, क्योंकि आई करंट 200 वोल्ट बैटरी से निकल रहा था. फिर वो आई की वैल्यू निकाली 3 एम्पियर. उसके बाद ये भी निकालना है कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में कनेक्टेड है इसकी वैल्यू कितनी है. तो मैंने यहाँ पर ये वाला पार्ट कंसीडर कर लिया, और इसको कंसीडर करने के बाद मैंने लूप रूल लगाया. लूप रूल लगा के मैंने आर की वैल्यू निकाली 20 ओम्स. तो इस तरीके से देखिए एक ही क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है और बहुत सिंपल है. तो जो किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन उसमें इसी तरह के वेराइटीज ऑफ लॉजिक लगे होते हैं जो आपको समझना पड़ेंगे. वेराइटीज ऑफ लॉजिक के एक ही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया यहाँ पर. एक क्वेश्चन में मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखा दिया, किसी एक लूप का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स. मतलब अगर ये हटा दें हम तो AC के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं. फिर मैंने आपको निकालना सिखाया कि अगर डिवाइसेस पैरेलल में कनेक्टेड है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस AC के अक्रॉस देखा तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V से मैंने आपको X का मतलब जो हमारा BAB था प्लस BBC इक्वल्स टू BAC आ रहा है, तो वो मैंने निकलवा दिया. डायरेक्शन मैंने आपको बताया अपोजिट हो रहा था, इसलिए वो प्लस हो गया, 186 हो गया. क्योंकि ये नीचे जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है. अब इनका डायरेक्शन सेम था, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो 170 प्लस 16 इक्वल्स टू 186. 170 प्लस 16 इक्वल्स टू 186 आना चाहिए. सिंपल सी चीज है, ठीक है, वो निकाला. फिर भी अभी हमको आगे बढ़ना था. अब हमने देखा अब आगे क्या निकालना है. अब हमें निकालना था, हमारे पास 5 एम्पियर था, हमारे पास दो अननोन वैल्यूज हैं. एक ये आई नहीं मालूम हमें और आई डैश नहीं मालूम. और आई डैश क्यों निकालना है? क्योंकि हमें 200 वोल्ट पर कितना करंट फ्लो हो रहा वो निकालना है. तो अगर उसको निकालना है तो हम पहले आई डैश निकालें. तो आई डैश हमारे लिए निकालना सिंपल था, क्योंकि वी डैश आई डैश वी डैश इक्वल टू आई डैश आर डैश ओम्स लॉ से निकाल के मैंने 16 वोल्ट इक्वल्स टू आई डैश इंटू आर करके आई डैश की वैल्यू निकाली. अब आई डैश की वैल्यू निकालने के बाद सिंपल यहाँ जंक्शन रूल एप्लीकेबल हो गया. जंक्शन रूल से मैंने आई की वैल्यू निकाली. आई की वैल्यू निकालने के बाद मैंने लूप रूल लगाया और आर की वैल्यू निकाली. तो आप देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने, तो ये जरूरी नहीं है आपको पूरा क्वेश्चन एज इट इज आ जाए, पार्ट्स में भी आ सकता है, पर इसमें 4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, 4 रीजनिंग क्लियर होगी.
तो इस तरह से अगर अपन मूव करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीजें एक ही फ्लो में आप कंप्लीट कर सकते हो। और मैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉर्ट आउट करवाना चाह रही हूँ आपको। अगला क्वेश्चन भी हमारा यही किरचॉफ्स लॉ पर ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो अगला क्वेश्चन है उसका सर्किट डायग्राम देखिए आप। चारों में दो में यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है आपकी, और यहाँ पर फिर हमारे पास 1 ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं। ओके, अब इसके बाद एक और बैटरी यहाँ कनेक्टेड है हमारे पास, और वो जो बैटरी कनेक्टेड है वो 5 वोल्ट की कनेक्टेड है, 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी बैटरी कनेक्टेड हो गई है। इस वाले सर्किट में हमारे पास एक भी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये हमको कुछ ना कुछ करंट तो दे ही रही होगी। तो हम इसको मान लेते हैं I3, इसको मान लेते हैं I2, और इसका I1, और सॉरी इसका हम I1 मान लेते हैं, और ये I2 करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था, और यहाँ पर हो जाएगा I1 माइनस I2। ठीक है, यहाँ जब हम पहुंचे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका I2 प्लस I3, क्योंकि यहाँ से I3 आया, यहाँ से, तो ये जंक्शन रूल पे, यहाँ जंक्शन पे पहुंचे तो दोनों ऐड हो गए। लेकिन यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास I1 करंट यहाँ निकला है, क्योंकि वो इस बैटरी के थ्रू निकला, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर I2 प्लस I3 माइनस ऑफ I1। भाई I2 प्लस I3 इस जंक्शन पर आया, और यहाँ से हमारा I1 निकल गया, I2 प्लस I3 माइनस I1 हो गया। ठीक है, ये सर्किट्स हमेशा हमको रीड्रॉ करने होते हैं, I1 माइनस I2। अब जब हम यहाँ पर पहुंचे हैं, इस जंक्शन पर जब हम पहुंचे, तो आप देखिए क्या होगा। इस जंक्शन पर पहुंचते समय हमारे पास आएगा, इधर से मिला हमको I1 माइनस I2, और इधर से मिला हमारा I2 प्लस I3 माइनस ऑफ I1। फाइनली आप देखिए ये सब कुछ कटेगा, और हमारे पास सिर्फ I3 ही बचेगा, क्योंकि यहाँ से I3 निकला था तो I3 ही वापस आया है, यहाँ से I1 निकला था तो I1 ही वापस आया है। क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जंक्शन पर करंट ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, इट कैन डिवाइड, and when brought back to common terminals it maintains its constant value। ठीक है, तो ये हमारा था A B C D, और ये हमारा हो गया E। ये सर्किट्स हमारे पास अब बन रहे हैं, ये हमारा ओवरऑल सर्किट डायग्राम है, और फाइनली ओवरऑल हमारा ये कंप्लीट करंट डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो बैटरी है यहाँ पर 10 वोल्ट की है, ठीक है, ये हमारी 5 वोल्ट की है। अब हमारे पास तीन वैल्यूज हैं, I1, I2 और I3। I1, I2, I3 अगर है तो हमको तीन इक्वेशंस फ्रेम करना पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम तीन इक्वेशन फ्रेम करना चाहते हैं तो ACDA पहला लूप ले लो आप, और पूरा एंटी क्लॉकवाइज।
ये आपको फाइनली मिलेगा इक्वेशन। कुछ नहीं किया है मैंने, 2 को इससे मल्टीप्लाई करा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा और इसको इसके बराबर, एंटी क्लॉकवाइज एक कंडीशन हमारी पूरी सिमिलर हो रही है। पूरा का पूरा आप मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, प्लस कीजिए, माइनस कीजिए, और हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी 7i1 माइनस 6i2 प्लस 2i3, 7i1 प्लस 6i2 प्लस 7i1 मिला हमको, सॉल्व कर देते हैं, i1 प्लस 2i2 प्लस 2i3 माइनस 2i1 प्लस ऑफ 4i1 माइनस ऑफ 4i2 इक्वल्स टू 10। ठीक है, i1 2i2 प्लस i3 माइनस i1, ओके, ये डायरेक्शन इस तरफ है, सॉरी, है ना, तो यहाँ पर साइन हमारे पास माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का है, ठीक है। अब ये माइनस का है तो ये माइनस ऑफ 2i2 माइनस ऑफ 2i3 प्लस ऑफ 2i1 प्लस ऑफ 4i1, ये प्लस था, 7i1 आया आपके पास, 7i1 आया, तो इसका डायरेक्शन नीचे जा रहा, बाकी सब एक डायरेक्शन में, ठीक है। फिर हमारे पास i2 देखेंगे हम, तो माइनस ऑफ 6i2 आना चाहिए, तो अब i1 हमारा पूरा चला गया है, i2 हमारा पूरा चला गया है, माइनस 2i3 शुड बी इक्वल टू 10, 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा आया फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन जो आया वो यहाँ लिख दूंगी, 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल्स टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन आया, ये मैंने फर्स्ट लूप कंसीडर किया है, इसमें ये डायरेक्शन ऐसा है, बाकी दोनों डायरेक्शन, तो ये दोनों हमारे प्लस में आ गए, ये हमारा माइनस में आ गया है, फाइनली आपका एक इक्वेशन यहाँ पर बन चुका है। अब ये जो इक्वेशन बना है, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन डाल के लिखेंगे, ये हमारे फर्स्ट लूप का आंसर आ गया। अब फाइनली हम सेकेंड लूप पर चलते हैं। जब हम सेकेंड लूप पर जाएंगे तो सेकेंड लूप हम ले लेंगे यहाँ पर ये वाला A B C A, मीन्स ये वाला लूप है। मैं आपको बता दूं, आप अगर रफ में ये लूप्स स्केच करके अगर सॉल्व करेंगे, जैसे एक मिस्टेक मैं जो करने वाली थी मेरी बच गई, कैसे बच गई, मैंने प्लस माइनस गलती करा था, तो अगर आप लूप लेके, अगर जैसे ये सब क्लॉकवाइज में है, पूरा का पूरा क्लॉकवाइज में, सारा नेगेटिव में चलेगा, ये हमारा 10 वोल्ट है, ये हमारी बैटरी कनेक्टेड थी यहाँ पर 10 वोल्ट की, यहाँ पर हमारा 1 ओम रेसिस्टर और 1 एम्पियर करंट, और यहाँ पर हमारे पास 2 ओम रेसिस्टर एंड i1 प्लस i2 प्लस i3 हमारा पास करंट, और जब हम यहाँ पर आए तो 4 और i2 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि सारा का सारा एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, तो आप चाहो तो माइनस और 4i2 माइनस ऑफ 2 इंटू i2 प्लस i3 माइनस ऑफ 1 इंटू i इंटू ये था हमारा i1 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 वोल्ट कर दो, सारा माइनस आपका हट जाएगा, 4i2 माइनस प्लस ऑफ 2i2 प्लस ऑफ 2i3 माइनस ऑफ i1 इक्वल्स टू 10, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा। इक्वेशन आपकी बन के आ रही है i1, और ये 2i2 प्लस 6i2 आ रहा है, और माइनस प्लस ऑफ 2i3 आ रहा है इक्वल्स टू 10। तो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर फ्रेम हो रही है, जो सेकेंड इक्वेशन हमारी फ्रेम हो रही है वो आ रही है i1 प्लस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल्स टू, तो हमने यहाँ सेकेंड इक्वेशन भी लिख ली। जैसे हमारी इक्वेशन फ्रेम हो जाए तो हम उनको अलग से लिखते चले जाएंगे सेपरेटली, i1 प्लस ऑफ 6i2 प्लस ऑफ 2i3 इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। इस इक्वेशन को बनाने के बाद हमको एक लूप और लेना है, वो जो लूप हमको लेना है वो मैं थर्ड लूप भी आपको बता देती हूँ। वो जो थर्ड लूप है
वो हमारा बड़ा वाला लूप है। यहाँ पर हमने 5 वोल्ट निकाला था, यहाँ हमारे पास I3 करंट था, वो I3 करंट यहाँ पर 2 ओम से निकला था, वो था हमारा I2 प्लस I3। और जब हम यहाँ पहुंचे थे इस वाले 2 के साथ, तो हमारे पास हो गया था I2 प्लस I3 माइनस I1, और फिर हमारे पास I3 था। ये हमारा थर्ड लूप है, ये हमारा थर्ड लूप है जो हमको निकालना था। तो इस थर्ड लूप में जब हम लेके चलेंगे तो इसमें भी सारा डायरेक्शन आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज है। तो 5 वोल्ट इक्वल्स टू 2I2 प्लस I3 प्लस ऑफ 2I2 प्लस I3 माइनस I1, ये हमारे पास बन के आ रहा है। तो इक्वेशन हमारे पास आ रही है 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2I3 प्लस 2I3 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 5 वोल्ट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4I2 प्लस 4I3 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 5 वोल्ट। ये हमारी इक्वेशन आएगी थर्ड, 4I2। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू कमिंग हियर, 4I2 प्लस, तो ये इक्वेशन हमारी अगली बन के आ गई, और हम इस थर्ड इक्वेशन को यहाँ पर डाल देंगे, और ये जो थर्ड इक्वेशन हमारे पास आ रही है 4I2 प्लस 4I3 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 5। वैसे भी आप देखिए ये जो पूरा लूप मैंने लिया है यहाँ पर, तो ये अगर अपन हटा दें, B यहाँ पर था D E B, ओके, तो इसको अगर हम निकाल लें तो ये हमारे पास आ रही है 4I2 प्लस 4I3 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 5, और अगर आप चाहो तो इसको रीअरेंज कर दो, 2I1 4I2 4I3, और ये सब थे दोनों प्लस में और ये अकेला था माइनस में। ठीक है, ये पॉइंट आपको मिल रहा है पूरा, 2 माइनस 2I1 प्लस ऑफ 4I2 प्लस ऑफ 4I3 इक्वल्स टू 5। अब जब हमारे सारे लूप निकल आए तो हम इस सब से हमको कुछ लेना देना अब नहीं है। ठीक है, हमको लेना देना कब आएगा, जब हम ये ब्रांचेस देखेंगे, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन कौन से लूप हैं, कौन कौन से। अब सबसे पहले तो हम निकाल लें यहाँ पर वैल्यू किसकी, I1 I2 की। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें, तो फर्स्ट इक्वेशन आप देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है 7 ऑफ I1 माइनस ऑफ 6 ऑफ I2 माइनस ऑफ 2 ऑफ I3 इक्वल्स टू 10, और I1 प्लस ऑफ 6I2 प्लस ऑफ 2I3 इक्वल्स टू 10। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन बच रही है आपकी 8I1, क्योंकि हमने ऐड करा है, और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, 2I3 प्लस हमारे पास बचेगा 20। तो एनी हाउ आपके पास आ गई 20/8, और यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे ये 2.5 एम्पियर, या आप इसको 5/2 मान लो, 2.5 एम्पियर, मतलब आपको I1 की वैल्यू मिल गई। तो इसलिए मैंने आपको ये तीनों इक्वेशन यहाँ लिखवाई थी, ताकि हम जज कर सकें कि कौन सी दो इक्वेशन को सॉल्व करना आसान होगा, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन है और हमको एलिमिनेशन मेथड तीनों पर लगा के और हमको वैल्यूज निकालना है। अब आप कुछ मत करो, अब आपके पास 2 इक्वेशन है यहाँ पर, है ना, ये दोनों इक्वेशन है, या ये दोनों ले लो आप, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। I1 तो हमारे पास आ ही चुका है, अब I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके I2 I3, हाँ आप एक काम करो, 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इक्वल्स टू 10, इससे में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 5/2 की। फिर हमारे पास था I1 प्लस ऑफ 6I2 7I1, फर्स्ट दो तो हम सॉल्व कर चुके हैं, तो हम फर्स्ट और थर्ड
सेकेंड एंड थर्ड ले लेते हैं, सेकेंड एंड थर्ड ले लेते हैं। सेकेंड एंड थर्ड को अगर हम लेंगे तो हमारे पास बच रहा है अब सेकेंड एंड थर्ड को लेके हमारे पास हो जाएगा I1 प्लस ऑफ 6I2 प्लस ऑफ 2I3 इक्वल्स टू 10 और यहाँ पर माइनस 2I1 प्लस ऑफ 4I2 प्लस ऑफ 4I3 इक्वल्स टू 5। ठीक, इसमें हम I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये हो जाएगी 2.5 या 5/2 आप डाल दीजिए और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू 5/2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इस 2 को अगर हमने यहाँ मल्टीप्लाई करा तो 5 प्लस 12I2 प्लस 4I3 इक्वल्स टू 20 हो गया ये, और यहाँ पर हमारे पास आ गया -5 प्लस ऑफ 4I2 प्लस ऑफ 4I3 इक्वल्स टू 5। मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम जब लिया तो ये I2 तो 12I2 और ये 2 और 2 4I3 और ये 20 हो जाएगा और ये -5 मेरे पास था ही था। इसको करने से हमारे पास क्या फायदा हुआ, अब हम इन दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर देंगे तो I3 कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये दोनों मिलके हमारे पास हो गए 10 और ये हमारे पास बचा है 8I2 और यहाँ पर हमारे पास बचा है माइनस ऑफ 25। तो आप देखिए यहाँ पर प्लस ऑफ 8I2, तो 8I2 इक्वल्स टू -25 -10, तो 8I2 इक्वल्स टू -35 आ रहा है और यहाँ से आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी। ये मैंने आपको सेकेंड पार्ट करवा दिया। तो I2 की वैल्यू हम निकालेंगे और उस I2 की वैल्यू निकालने के बाद अब आपके पास I1 भी है, आपके पास I2 भी है। अब I1 और I2 की वैल्यू निकालने के बाद देखिए 5/2 मैंने यहाँ रखा, आपका कंफ्यूजन दूर कर रही हूँ। सेकेंड इक्वेशन में 6I2 रखा, 2I3 रखा, 10 माइनस ऑफ 2 इंटू 5/2 प्लस ऑफ 4I2 10, ये 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले में एलसीएम आ गया। एलसीएम आया तो ये सिंपल हो गया, आपको यहाँ पर I2 की वैल्यू मिल गई। I2 की वैल्यू निकालने के बाद अब आपको निकालना है I3 की वैल्यू। इसके आगे मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपने ये मेथड बहुत अच्छे से 10th में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ा है। आप I2 की वैल्यू जैसे आपने निकाली, I2 की वैल्यू निकालने के बाद आप I3 की वैल्यू निकालिए और I3 की वैल्यू निकालने के बाद हमको क्या करना है, हमारी जो ब्रांचेस थी A, B, फिर C, फिर D, फिर AD, फिर ये I3 था। हर ब्रांच का आपको करंट निकालना था, एक ये था। अब I1 आपको यहाँ मिल गया, I2 आपको यहाँ मिल गया, I1 माइनस I2 आपको यहाँ मिल गया। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा I2 प्लस I3 और यहाँ पर आपको I3 मिल गया। तो आपको हर ब्रांच ऑफ, अब आपने I1 निकाला, I2 निकाला, I3 आप निकाल लेंगे, I3 आप निकाल लेंगे। एज असाइनमेंट आप कीजिए, क्योंकि ये मेथड में इसलिए अब आगे नहीं बढ़ा रही हूँ क्योंकि इसको बढ़ा के कोई टाइम वेस्ट करना है। अपना जो लॉजिक था वो मैंने आपको समझा दिया, इक्वेशंस मैंने आपको समझा दी, पूरी करेक्ट है, उसमें कुछ भी गलती नहीं है, सिर्फ आपको I1 I2। अब वो पूछ रहा है ईच ब्रांच में हमको करंट निकालना है, तो हमको AB में निकालना है, तो AB में हमारे पास I2 था, हमको AC में निकालना हमारे पास I1 था, हमको AD में निकालना तो I1 माइनस I2 था। ठीक है, हमको BC में निकालना है तो I2 प्लस I3 था, हमको CD में निकालना है तो I2 प्लस I3 माइनस I1 था और I3 हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो इस तरीके से हम ये किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल्स करते हैं और आपको ये पूरा सॉल्यूशन निकालना है। और मेरे हिसाब से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। मेन चीज इसमें ये क्या रहती है कि हम जंक्शन रूल कैसे लगा रहे हैं, लूप रूल कैसे लगा रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें निकालने आपको डायरेक्शन, तो मैंने सारा एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, सारे क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है, बस ये मैंने फॉर्मेट डाला है। इस चीज को आप ध्यान रखना साइन कन्वेंशन के लिए, और आप ये मेथड अप्लाई करो
मेथड लर्न करो, सीखो। इतना बड़ा न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट, मैंने असाइनमेंट दिया है आपको, आप अपने आप से कर सकते हो। सारा कुछ आपने 10th की मैथ्स में पढ़ा है। मेजर ऑब्जेक्टिव मेरा मैथ्स पढ़ाना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव मेरा फिजिक्स पढ़ाना है। तो मैंने फिजिक्स का जो बेसिक लॉजिकल कॉन्सेप्ट था वो आपको समझा दिया, प्लस माइनस आई थिंक यू कैन डू। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आंसर मिलेगा, और इसको सॉल्व करने में आपको आनंद भी आएगा, कुछ 10th की मैथ्स आपको रिकॉल हो जाएगी। सो टुडे आई एम एंडिंग द लेक्चर। ओके, थैंक यू।